Hello everyone, in today's video we will understand the Lucas test. So this test is used to differentiate between the 1 degree, 2 degree and 3 degree alcohols, and in Lucas test we use the Lucas reagent, and this reagent is a combination of the concentrated hydrochloric acid with zinc chloride. Okay, so when we act the Lucas reagent on 1, 2 and 3 degree alcohols, so what the result we get, we will see that. Okay, so here 1 degree alcohol, 2 degree alcohol and 3 degree alcohols are there. So when we just have the in Lucas reagent, I am writing in short here. Okay, so when it act on it, it forms chloride. There alkyl chloride. Okay, so what the product will form are CH2Cl, here RCH, RCl, and here also. Okay, so these are the alkyl halides. We can say alkyl halides are formed after the reaction of the Lucas reagent. Now what the changes we observe in the solution is that this tertiary alcohol, when we act the Lucas reagent on tertiary alcohol, intense बहुत जल्दी से ये टर्बिडिटी देता है सोल्यूशन में. ओके, सो instantly gives turbidity. And what is turbidity? It is clear solution ना होके थोड़ा सा धुंधलापन हो solution में, means we cannot see clearly through the solution. ओके, तो उसे बोलते हैं हम टर्बिडिटी. सो जो टर्शरी अल्कोहल्स होते हैं वो हमारे क्या देते हैं, वो इंस्टेंटली टर्बिडिटी देते हैं किसके साथ, ल्यूकास रिएजेंट के साथ रिएक्शन करने पर. उसके बाद जो हमारे सेकेंडरी अल्कोहल्स होते हैं वो जो होते हैं वो आफ्टर फ्यू मिनट, सो गिव्स टर्बिडिटी आफ्टर few minutes. Okay, and do not give turbidity, do not give turbidity at all, ये नहीं देते हैं. ठीक है, तो जैसे ही हमारे पास अल्कोहल होगा अननोन और हमें ये पता नहीं है दैट वेदर वी आर हैविंग 1, 2 और 3 डिग्री अल्कोहल्स, अगर वो इंस्टेंटली टर्बिड हो जाएगा तो हम बता देंगे कि इट इज टर्शरी अल्कोहल. अगर वो कुछ मिनट के बाद धुंधला बन देगा, क्लियर सोल्यूशन जो है वो कैसा हो जाएगा, वो अब क्लियर नहीं रहेगा, तब हम उसे बोलेंगे इट इज अ सेकेंडरी अल्कोहल. और when our solution is throughout clear, वो clear है, transparent है, तब हम कहेंगे it is our primary alcohol. Okay, so this Lucas test से हम डिफ्रेंशिएट कर लेंगे किसमें, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल्स में. और हमने ये देख लिया कि कॉम्बिनेशन है किसका, HCl plus ZnCl2 का, और इस तरीके से ये रिजल्ट देगा. ठीक है, अभी हम अपनी नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ चलते हैं. Now we will do the reaction of the alcohol with phosphorus tribromide. Okay, तो हम देखते हैं प्लस हम इसकी रिएक्शन कराएंगे phosphorus tribromide. इसके भी हमको यहाँ पे 3 मोल्स लेने पड़ेंगे. हम जब रिएक्शन लगाएंगे वी नो इट इज पार्शियल नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड पॉजिटिव. तो ये नेगेटिव पॉजिटिव पार्ट से जाकर अटैच होगा और ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे. ठीक है, तो 3 मोल हमें मिलेगा RBr प्लस. अब यहाँ पर हमारे पास 3 हाइड्रोजन बचा, तो H3PO3. ओके, तो हमारे पास ये बाई प्रोडक्ट मिला हमको, एंड दिस इज आवर मेन प्रोडक्ट. ओके,
तो ये था रिएक्शन विथ फॉस्फोरस ट्राइब्रोमाइड। अभी हम इसकी डिहाइड्रेशन रिएक्शन देखेंगे अल्कोहल्स की। व्हाट इज डिहाइड्रेशन रिएक्शन एंड वी नो दैट व्हाट इज डिहाइड्रेशन, इट इज रिमूवल ऑफ वाटर। ओके, सो हम उसे देखते हैं। Now we will see the dehydration reaction, and what is dehydration? It is removal of water. Removal of water. Okay, so it will be dehydration. So in dehydration reaction we use the dehydrating agent, and acids are very good dehydrating agent. So we use acids as a dehydrating agent in this reactions. Okay, so we will note it down that acids are used as dehydrating agent. Okay, so one thing to be noted is that when the compound are reactive, which are going to be dehydrate, so we use the weak acids for that. हम उसमें weak acid as a reagent use करेंगे, but if the compound is less reactive, जिस compound को या जिस alcohol को हम dehydrate कराने जा रहे हैं वो अगर हमारा less reactive है तो हम वहां पर strong एसिड्स को यूज करेंगे प्रेजेंस, और अगर हमारे जो अल्कोहल्स हैं वो अगर मोर रिएक्टिव हैं तो हम वहां पर वीक एसिड्स को एज अ एजेंट यूज करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ इसको भी नोट कर लेते हैं दैट फॉर मोर रिएक्टिव कंपाउंड weak acids are used. Weak acids are used, and for less reactive compounds, strong acids are used. हम प्रेजेंस वहाँ स्ट्रॉन्ग और वीक की लेंगे किस तरीके से, अगर हमारा ज्यादा रिएक्टिव कंपाउंड है तो हम वहाँ पर वीक एसिड की प्रेजेंस लेंगे, और अगर लीस्ट रिएक्टिव है तो वहाँ पर हम किसकी लेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड की प्रेजेंस लेंगे। और हमारा जो अल्कोहल्स का जो रिएक्टिविटी ऑर्डर जो होता है वो होता है रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ एल्कोहल्स। क्या होता है, सबसे पहले 1 डिग्री सबसे कम रिएक्टिव होता है, फिर उससे ज्यादा 2 डिग्री, फिर उससे ज्यादा 3 डिग्री। तो हम 1 डिग्री के लिए स्ट्रॉन्ग, फिर इसके लिए स्ट्रॉन्ग या मॉडरेट, और इसके लिए हम लेस रिएक्टिव या फिर वीक एसिड को एज अ प्रेजेंस लेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ रिएक्शन देख लेते हैं। सबसे पहले हम रिएक्शन देखें प्राइमरी अल्कोहल के लिए। सपोज हमारे पास है यहाँ पर CH3CHOH, इसको मैं लिख देती हूँ ओपन स्ट्रक्चर की फॉर्म में। ओके, तो ये हमारा है 1 2 3 4 1 2 ओके, ये हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, अपना प्राइमरी अल्कोहल लिख दिया है। अब ऐसा कार्बन जिससे फंक्शनल ग्रुप अटैच रहता है वो हमारा कौन सा कार्बन होता है, वो होता है हमारा अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन के जस्ट पास वाला कार्बन कौन सा होगा, हमारा होगा बीटा कार्बन। ओके, बीटा कार्बन। अब यहाँ से तो ये OH ग्रुप रिमूव होगा, और हाइड्रोजन हमेशा बीटा कार्बन से रिमूव होता है, जिसको हम बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। तो ये जो हमारा रिएक्शन होगा वो कैसा होगा, वो हमारा होगा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। बीटा एलिमिनेशन ओके। So it is called beta elimination reaction. Why? Because
the hydrogen is removed from the beta carbon. And what is beta carbon? The carbon to which a functional group is attached is known as the alpha carbon, and the nearby carbon exact to the alpha carbon are the beta carbons. Okay, तो हमारा ये बीटा एलिमिनेशन होगा. एंड प्रेजेंस लेंगे हम कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एंड टेम्परेचर 473 केल्विन. अब हमारा जब यहाँ से किसी भी हाइड्रोजन को रिमूव कर दो, एक ये दिया और ये वाटर की फॉर्म में रिमूव होगा तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा. तो हमारा जो कंपाउंड बचेगा तो वो होगा C. इसके पास 2 हाइड्रोजन आर रिमेनिंग. यहाँ पर कार्बन OH हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम हियर, सो वैलेंसी 1 2 3 1 2 3. सो वी विल राइट द डबल बॉन्ड हियर, सो N प्लस वाटर मॉलिक्यूल. ओके, तो ये हमारा बन गया इथीन. राइट, तो ये हमारा प्राइमरी अल्कोहल्स के लिए हुआ. नाउ वी विल सी द सेकेंडरी अल्कोहल्स. ओके, नाउ वी विल सी कार्बन, again this carbon to which a functional group is attached, it will be our alpha carbon, and the nearby carbon are the beta carbon. तो ये भी हमारा बीटा कार्बन है और दिस वन ऑल्सो बीटा कार्बन. अब द हाइड्रोजन कैन बी रिमूव फ्रॉम एनी वन ऑफ द बीटा कार्बन. यहाँ से भी हाइड्रोजन को रिमूव कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं. इट इज ऑफ योर चॉइस कि आप कहाँ से रिमूव करना चाहते हैं, वो दोनों जगह से सकता है. नाउ इट इज आवर 2 डिग्री अल्कोहल. राइट, अब हम जब यहाँ से सपोज OH ग्रुप तो यहाँ से निकलेगा और सपोज हम यहाँ से हाइड्रोजन को अगर एलिमिनेट कर देते हैं तो हमारा माइनस यहाँ पे प्रेजेंस कह रहे हैं हम फॉस्फोरस एसिड H2PO3 टेम्परेचर 453 केल्विन. इतना हमें टेम्परेचर लेना है. ये भी हमारा बीटा एलिमिनेशन हो जाएगा. ओके, तो हमारा जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी व्हाट. पहले तो हम यहाँ कार्बन ही लिख देते हैं सीधा सीधा. उसके बाद में यहाँ 2H हमारे पास यहाँ पर वी हैव नाउ 1H हियर वी हैव एंड हियर CH3. राइट, सो वैलेंसी सेटिस्फाई हियर 1 2 3. वी विल पुट डबल बॉन्ड हियर. ओके, नाउ सी यहाँ पर हमने लिया अपना सेकेंडरी अल्कोहल. So the OH group will be removed from the alpha carbon and hydrogen from beta carbon. Then our product will be prop1ene. This is prop1ene, and water molecule has been eliminated from the secondary alcohol. Okay, so dehydrating reaction has been take place. Now here we will see the tertiary alcohol. Here we write it down. So here OH group we remove from here, और हमको हाइड्रोजन यहाँ से जहाँ से भी हम रिमूव करना चाहें उसे रिमूव कर सकते हैं. ओके, सपोज वी आर रिमूविंग इट फ्रॉम हियर. तो हमारा जो कंपाउंड बनेगा वो क्या होगा? इट विल बी CH3. ओके, इधर हम लाएंगे डबल बॉन्ड. तो ये हमारा कंपाउंड हो जाएगा 2-methyl prop1ene. ओके, सो इट विल बी 2-methyl prop1ene. राइट, तो ये हमने रिएक्शन डिहाइड्रेशन रिएक्शन कराई किसमें? प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल्स में. और हम जो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड अकॉर्डिंग टू द अल्कोहल हमने रिड्यूस कर दी बिकॉज ऑफ द रिएक्टिविटी ऑफ द अल्कोहल्स. बिकॉज प्राइमरी अल्कोहल वर नॉट सो रिएक्टिव, इसलिए हमने वहां पर स्ट्रॉन्ग एसिड और टेम्परेचर भी थोड़ा ज्यादा लिया. देन आफ्टर वी टुक द फॉस्फोरस एसिड विद टेम्परेचर सम रिड्यूस टेम्परेचर और बीटा एलिमिनेशन यहाँ कराया. और यहाँ पर हमने 20% फॉस्फोरस एसिड लिया और यहाँ पर हम इसको टेम्परेचर और रिड्यूस कर दिया. तो हमारे ये सारे क्या बन गए? प्रोडक्ट बन गए, जिसमें हमारा अल्कोहल हर एक डिहाइड्रेशन रिएक्शन के बाद अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या हो गया? चेंज हो गया. ठीक है, तो
all unsaturated hydrocarbons are formed by the elimination of the water molecule in the dehydration reaction. तो यहाँ पे हमारा डिहाइड्रेशन ओवर होता है. अब हम नेक्स्ट ऑक्सीडेशन की तरफ चलेंगे. दैट इज ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स. ओके, नाउ वी विल जस्ट अंडरस्टैंड द वन टर्म दैट इज, हमने अभी इससे पहले डिहाइड्रेशन पढ़ा जिसमें हमने देखा कि डिहाइड्रेशन इज डन इन द प्रेजेंस ऑफ एनी एसिडिक एजेंट और बिकॉज एसिड्स आर गुड डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स. ओके, तो हम उसमें जो एसिड यूज करते हैं वो प्रोटिक एसिड्स होने चाहिए. और व्हाट आर प्रोटिक एसिड्स? दीज आर द एसिड्स विच रिलीज H+ आयन और प्रोटॉन्स को रिलीज जो करते हैं वही क्या होते हैं? प्रोटिक एसिड होते हैं. और फिर वही कैटलिस्ट की तरह वर्क करता है. ठीक है ना, डिहाइड्रेशन में. तो ये तो हमारा हो गया प्रोटिक एसिड के बारे में. इसके एग्जाम्पल्स हैं दैट इज HCl, HNO3 है, H2SO4, H3PO4 और H3PO3. ओके, अब हम आते हैं ऑक्सीडेशन पर. सो ऑक्सीडेशन, वी नो व्हाट इज ऑक्सीडेशन. इट इज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन. यही क्या होता है? हमारा ऑक्सीडेशन होता है. या तो हाइड्रोजन रिमूव कर दें हम और या फिर ऑक्सीजन को वहां पर ऐड कर दें. तो ऑक्सीडेशन जब भी हम अल्कोहल्स का कराते हैं हमें कार्बोनिल कंपाउंड्स मिलते हैं. और वो कार्बोनिल कंपाउंड्स का सिंबल कुछ इस तरीके से होता है. या These are carbonyl group is found in the aldehydes, ketones as well as in carboxylic acid, जहाँ पर हमारा ऑक्सीजन जो है वो डबल बॉन्ड के साथ अटैच रहता है कार्बन से. ठीक है, तो ये कार्बोनिल जो हमारा ग्रुप है वो हमारा एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड तीनों में पाया जाता है. अब यहाँ भी हम स्ट्रॉन्ग और वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज करते हैं. अगर हमको अल्कोहल से स्टेप बाय स्टेप कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है तो हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करेंगे. वीक या मॉडरेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम यूज कर सकते हैं. जैसे अगर हमें सिर्फ सिंगल स्टेप में अल्कोहल से एल्डिहाइड चाहिए तो हम वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं. अगर हमें अल्कोहल से सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड चाहिए, बीच में मीडियम जो हमारा मीडिएटर प्रोडक्ट जो आ रहा है दैट इज एल्डिहाइड, वो नहीं चाहिए, सीधा हमें अल्कोहल से क्या चाहिए? कार्बोक्सिलिक एसिड. तो हम वहां पर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं. जब हमको अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाना है देन वी यूज द वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. व्हेन वी वांट टू मेक द कार्बोक्सिलिक एसिड डायरेक्टली फ्रॉम द अल्कोहल देन वी यूज द स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमने यहाँ पे लिस्ट किए हैं दैट इज वीक एंड स्ट्रॉन्ग. हम उनको देख लेते हैं. वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आर क्रोमियम ऑक्साइड, PCC दैट इज पेरिमीडियम क्लोरोक्रोमेट और पाउडर्ड कॉपर जिसका टेम्परेचर हम रखेंगे 573 केल्विन. यहाँ पर हमने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज किया है जिसमें हमारा एसिडिफाइड KMnO4, K2Cr2 और स्ट्रॉन्ग एसिड. ठीक है ना, तो ये हम जो यूज करेंगे वो हमारे हैं स्ट्रॉन्ग और ये वाले हैं हमारे वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ओके, तो मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है अल्कोहल से एल्डिहाइड वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अल्कोहल से डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पर हम लिखेंगे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ओके, अब हम सीधा रिएक्शन की तरफ चलते हैं. आइए हम यहाँ पर ऑक्सीडेशन देख लेते हैं. यहाँ पर हमने अल्कोहल लिया, क्रोमियम ऑक्साइड एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम यूज कर रहे हैं. तो हमारा यहाँ क्या बनेगा? हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा दैट इज CH3CHO. हमारा प्रोडक्ट बना एल्डिहाइड. ओके, नेक्स्ट हमने अल्कोहल फिर से लिया है और यहाँ पर हमने प्रेजेंस ली PCC की, पेरिमीडियम क्लोरोक्रोमेट की. और यहाँ पर जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी CH3CH डबल बॉन्ड CH देन CHO. अगेन हमें क्या मिला? एल्डिहाइड मिला. ठीक है, नेक्स्ट हमने यहाँ पर लिया है 2 डिग्री अल्कोहल. ये 2 डिग्री अल्कोहल है
तो यहाँ हम रिएक्शन कराएंगे तो ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा और ये यहाँ से ब्रेक होगा। तो हमारा जो कंपाउंड बनेगा दैट विल बी CH3CO, यहाँ पर बचा डबल बॉन्ड O और बन गया हमारा CH3। सो 2 डिग्री अल्कोहल का जो हम ऑक्सीडेशन करा रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है यहाँ पर कीटोन। ओके, 1 डिग्री पर हमें क्या मिल रहा था यहाँ पर एल्डिहाइड। ये भी हमारा क्या है, दिस इज एल्डिहाइड। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ मैंने 1, 2 और 3 डिग्री अल्कोहल्स लिखा है। कंडीशन तीनों में सेम रखी है। कॉपर पाउडर टेम्परेचर सेम दैट इज 573 केल्विन। तीनों में मैंने टेम्परेचर सेम लिया है यहाँ पर हमने। और ये 1, 2, 3 डिग्री अल्कोहल है। अब इनके प्रोडक्ट कैसे वैरी करेंगे वो देख लेते हैं। यहाँ पर हमारा क्या बनेगा, दैट इज CH3CHO, ये बना हमारा एल्डिहाइड। नेक्स्ट वाले में हमारा ये बॉन्ड यहाँ से और ये यहाँ से ब्रेक होगा, दैट इज CH3C डबल बॉन्ड O CH3, ये बन गया हमारा कीटोन। और यहाँ पर हमारा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन देगा ये। तो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन के लिए ये अल्फा कार्बन है, बाकी सारे बीटा कार्बन हो जाएंगे। तो कहीं से भी हमको हाइड्रोजन को रिमूव कराना है, यहाँ से ये OH ग्रुप जाएगा। तो ये बीटा एलिमिनेशन होने की वजह से हमारा कंपाउंड क्या बनेगा, दैट इज CH3CH2CH3। ओके, सो यहाँ पर हमारा हो जाएगा डबल बॉन्ड, राइट। तो ये हो गया हमारा वही मिथाइल 2 मिथाइल प्रोपवानीन। ये हमारा क्या बन गया, 2 मिथाइल प्रोपवानीन। ठीक है, तो ये हमारे प्रोडक्ट यानी जो हमारे टर्शरी अल्कोहल्स हैं वो जनरली कीटोन या एल्डिहाइड नहीं देते हैं जब उनका ऑक्सीडेशन कराया जाता है। और उनका ऑक्सीडेशन कराने के लिए हमें कंडीशंस बहुत एक्सट्रीम रखनी पड़ती हैं, बहुत ज्यादा इंटेंसिटी या स्ट्रेंथ का एसिड और टेम्परेचर भी बहुत हाई रखना पड़ता है, तब जाकर वो ऑक्सीडेशन देते हैं। जनरली हम नहीं कराते उनका। तो हम प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराकर एल्डिहाइड और कीटोन्स को ऑब्टेन कर सकते हैं। प्राइमरी अल्कोहल का जब हम ऑक्सीडेशन कराएंगे हमें एल्डिहाइड्स मिलते हैं, और सेकेंडरी अल्कोहल का कराएंगे तब हमें कीटोन्स मिलते हैं। यहाँ पर हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन ओवर होता है। अभी तक हम पढ़ चुके हैं यहाँ पर कौन कौन सी रिएक्शन, केमिकल रिएक्शंस में acidic nature of alcohols and phenols, then after esterification, then after Lucas test, then dehydration, then oxidation. Okay, ये सारी रिएक्शंस हम पढ़ चुके हैं। अब हम we will do our next topic in our next video. Enough for today. Thank you so much.